Good evening, everyone. Hope everything is okay with everyone. Let us just continue with the gaps from the previous session. We have left lastly towards the things that need to be paid attention on. Today, in this session, we are going to understand the types of gaps, how they occur, what is their nature, then how to trade them one by one. I'm going to explain you everything one by one. Have patience, listen to me very carefully. If you have any doubt, raise the hands, ask the questions. I'll clarify you immediately. In previous session, a couple of guys they have complained me that I have been very fast in my narration. So today I'm trying to keep myself composed, going slow, talking slow. My speed of conversation is going to be a bit slow. That might end up this session is going to be a bit longer. So hope nobody would mind it. So let us just begin. Yes, there's some more complaints that I need to explain these things in English as well. Since my major participants are Hindi speaking, they are from Hindi speaking belt, and since this video I am making for the majority, so what I would suggest is, though I would try to include English into the presentation, but at the same time I'm going to make the same video or the same presentation purely in English so that it would be easy for those participants who have the difficulty understanding Hindi. And everybody will get these all presentations either on my YouTube channel or on my Facebook or on my Telegram channel, wherever they are present, wherever they are following me. My stuff, this particular stuff is free for everyone. Free for everyone. I'm just giving it to everyone complimentarily, because on this Diwali I have not given anybody anything. So this is something that is more sensible that I thought that I should give away. So let us just begin. शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ गैप से. जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि गैप्स जो होते हैं बेसिकली चेंज ऑफ सेंटिमेंट होता है, चेंज ऑफ पोलरिटी होता है, change of biasness होता है in the existing trend. I am repeating one word, existing trend. अब इस केस में क्या होता है, मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूँ. उस पिक्चर में जो चीज़ें वो क्लियर होंगी. और गैप का जो है वो डेफिनेशन ओरिजिनेट होता है उसके ओपनिंग प्राइस से, किसी भी दिन के ओपनिंग प्राइस से इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस, then in respect of previous days range, both included, right? Both included यानी कि पिछले दिन की पूरी रेंज और पिछले दिन का क्लोज, इसके रेफरेंस में आज का प्राइस कहां पर ओपन हुआ वो चीज तय करती है कि प्राइस जो है वो गैप अप हुई है या नहीं हुई है. ठीक है, तो एक पिक्चर मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए. ठीक है, तो वो रेफरेंसेस मैं आपको लिख देता हूं. गैप्स जो हैं, गैप्स, राइट? तो हाउ टू रीड देम? गैप्स टू बी रीड विद टू रेफरेंसेस, है ना. नंबर वन, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ previous day, and number two is the range of the previous day. Okay, रेंज से मेरा मतलब है
द डिफरेंस बिटवीन हाई एंड लो। ठीक है, बहुत सारे लोगों को ये परेशानी होती है कि रेंज क्या होता है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा अपने पार्टिसिपेंट्स को कि थोड़ा सा वो होमवर्क करें। जो बहुत नए हैं उनके लिए जो है थोड़ा ज़रूरी है कि थोड़ा सा वो बेसिक जो है अपने चार्टिंग्स के या बेसिक जो है अपने कैंडलस्टिक पैटर्न्स के वो थोड़ा सा कहीं से ग्रैब करें। अदरवाइज जो है मेरे सेशंस अवेलेबल हैं जो कि प्रोप्राइटरी हैं, जो मेरे पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं वो उनके लिए अवेलेबल हैं, लेकिन वो सेकंड स्टेज के पार्टिसिपेंट्स के लिए, नॉट फॉर द फर्स्ट स्टेज पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेज पार्टिसिपेंट्स जो होते हैं उनको तो मैं जो है सेशंस में ही जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ, या फिर इस तरह की प्रेजेंटेशंस में एक्सप्लेन चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है ना। तो जैसा रेंज जो होता है किसी भी दिन का, वो उस दिन का हाई और लो का डिफरेंस होता है। तो आज का यदि मान लो ओपन पिछले दिन के रेंज से अंदर है या बाहर है, ठीक है ना। दूसरी बात, आज का जो ओपनिंग प्राइस है कल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर खुला है या नीचे खुला है, ये दो चीजों से तय होता है कि गैप जो है उसका टाइप क्या होगा। ठीक है। ये पहले पिक्चर जो आप देख रहे हैं, ये वाली पहली पिक्चर जो है, इसमें जो है 3 दिनों के कैंडल्स मैंने बनाए हैं। एवरी कैंडल इज रिप्रेजेंटिंग 1 डे मूव, है ना। तो ये जो है आपका कैंडल नंबर 1 है जो कि ग्रीन कलर में है। नंबर 2, चलिए मैं थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ कि इसको थोड़ा सा मैं नियॉन में कर देता हूँ। ओके, तो नंबर 2 जो होगा वो आपका जो है वो सेकेंड डे का कैंडल हो जाएगा, और नंबर 3 जो है वो आपका थर्ड डे का कैंडल हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा कर लेते हैं। ओके, तो क्या होगा कि देखिए अब ये पहले दिन जो था ये एक बुलिश डे था, यहां पर ओपन हुआ, लो ये बनाया, हाई ये बनाया, और क्लोज यहां पर हो गया। ठीक है, ये जो है डे नंबर 1 का जो है वो सिनेरियो था। सेकेंड डे क्या हुआ, सेकेंड डे का ओपन प्राइस ये है, चूंकि ग्रीन कैंडल है यानी कि बुलिश कैंडल हम इसको मान के चलते हैं। जनरली जो है चार्टिंग सॉफ्टवेयर्स में पॉपुलरली जो है ग्रीन कैंडल रिप्रेजेंट करती है बुलिश डे को, और रेड कैंडल रिप्रेजेंट करती है बेरिश डे को। तो ये भी जो है एक बुलिश डे है जहां पर कि एक ये कैंडल जो है मोरीबोजू कैंडल है। मोरीबोजू कैंडल जो होती है जिसमें कि ओपन लो इज इक्वल जो है वो सेम होता है, देखिए फ्लैट है, इसको बोलते हैं शेप्ड हेड, यानी कि इसका टकला सिर होता है वो, है ना। शेप्ड हेड जो है वो जो कैंडल जो होती है जिसमें कि या तो बॉटम जो होता है यानी कि ओपन प्राइस जो होती है वो लो के बराबर होती है, या फिर ओपन प्राइस जो है हाई के बराबर होती है। अब जैसे कि इस कैंडल में यदि ये ऐसा कोई सीन आ जाए तो क्या हुआ, ये भी एक शेप्ड हेड कैंडल है, यानी कि इसके ऊपर जो है आपको शेडो नजर नहीं आ रही है, और चूंकि ये रेड कैंडल जो है वो बेरिश कैंडल मानी जाती है, और यहाँ पर जो सिनेरियो बनेगा वो ओपन इज इक्वल्स टू हाई वाला सिनेरियो बनेगा। तो ये शेप्ड हैंड जो है वो हेड कैंडल जो है वो एक बेरिश कैंडल है, ये मोरिबोजो कैंडल हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि फर्स्ट रेफरेंस हमको ये मिला कि जब ये ओपन प्राइस जो है वो इस कैंडल की रेंज के अंदर जो है वो ओपन हुई है, नंबर 1। ठीक है, नंबर 2, ये ओपन प्राइस जो है कल के प्रीवियस क्लोज के नीचे जो है वो ओपन हुई है, तो इसका नाम जो होगा वो गैप डाउन होगा। ठीक है ना। तो गैप अप और गैप डाउन, इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अप और डाउन वर्ड जो यूज करते हैं, है ना, है ना, तो वर्ड्स जो है वो अप एंड डाउन टू बी यूज्ड इन with respect to previous day close। ठीक है, ये चीज आपको हमेशा ख्याल रखनी है, ये चीज जो है वो नॉमेनक्लेचर में जो है आपके लिए दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि भाई गैप अप का मतलब क्या हुआ। तो गैप अप का मतलब ये हुआ कि आज का जो ओपन प्राइस जो है कल के ओपन क्लोज प्राइस के ऊपर है ना। और गैप डाउन का मतलब ये है कि आज का जो ओपन प्राइस है कल के क्लोज प्राइस के नीचे है। ठीक है, तो ये गैप अप और गैप डाउन का जो है वो कंसेप्ट जो है वो यहाँ से शुरुआत होती है क्लासिफिकेशन के हिसाब से। अब हम आते हैं
उस नॉमेनक्लेचर के ऊपर कि उसका लोकेशन क्या है ना। तो अब ये दो जो है हमारे पास में टाइप्स आते हैं, एक होता है इनसाइड गैप और एक होता है आउटसाइड गैप। ये दो तरह के कैंडल जो है वो हमको गैप मिलते हैं। ये इसका मेजर जो है क्लासिफिकेशन है। इसके बाद में जो है सब क्लासिफिकेशन जो है वो हम आगे देखेंगे। ये मेजर क्लासिफिकेशन जो होगा गैप अप एंड गैप डाउन का, वो होगा एक इनसाइड गैप और आउटसाइड गैप। ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं इनसाइड गैप के बारे में, जहां पर कि आपका ये मोरीबोजो कैंडल है और ये जो है गैप डाउन हुआ है। गैप डाउन यानी कि प्रीवियस डे के क्लोज प्राइस के ये नीचे ओपन हुआ है, इसलिए गैप डाउन कहलाएगा। तो ये गैप डाउन हुआ, विद इन द रेंज है, पिछले दिन के कैंडल की रेंज में है, इसके लिए हमने इसका नाम क्या रखा हुआ है, इनसाइड गैप। ठीक है ना। तो जो इनसाइड और आउटसाइड जो वर्ड्स जो हमको यूज जो टर्म जो यूज करनी है ना, इनसाइड और आउटसाइड, ये दो जो है वो टर्म्स यूज करनी है ना। To be used in respect of the range of the previous day। ठीक है ना। ये जो है आपको अब क्लियर हो गया होगा कि भाई इनसाइड और आउटसाइड का मतलब क्या होता है। इनसाइड यानी कि प्रीवियस डे रेंज के अंदर यदि ओपन हो रहा है तो वो इनसाइड गैप हुआ। अब देखिए थर्ड कैंडल जो होगा, जो रेड कलर का कैंडल है, ये भी एक इनसाइड गैप कैंडल है, लेकिन अब यहां पर क्या हुआ, ये भी एक गैप डाउन जो है वो कैंडल है। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड डे का जो क्लोज प्राइस था वो ये था यहां पर। ठीक है। और आज ओपन कहां हुआ, उसके नीचे, यानी कि वो गैप डाउन हुआ और गैप डाउन होने के बाद में ये जो है ये नीचे आया है प्राइस। और चूंकि ये इस कैंडल के अंदर ही ओपन हुआ है, इस कैंडल की रेंज के अंदर ही ओपन हुआ है, इसलिए ये कहलाएगा इनसाइड गैप। तो इनसाइड गैप जो है वो तब होता है जब ओपन प्राइस जो है पिछले दिन के क्लोजिंग प्राइस से या तो ऊपर होती है या नीचे होती है। नंबर टू, वो पिछले दिन के प्राइस रेंज के अंदर होती है, तो ये कहलाएगा आपका इनसाइड गैप। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं अपन आउटसाइड गैप। आउटसाइड गैप क्या होता है कि जब कोई भी कैंडल जो है पिछले दिन की रेंज से, पिछले दिन की कैंडल की रेंज से जो बाहर जब हमको ओपन मिलेगा तो वो कहलाता है आउटसाइड गैप। ठीक है। जैसे कि हम इसी का एग्जांपल लेते हैं कि यदि ये कैंडल जो है, ये रेड कैंडल जो है, ठीक है, ये यहां कहीं ओपन हुई होती, यहां कहीं ओपन हुई होती, तो ये थर्ड कैंडल जो है, चूंकि इसका ओपनिंग प्राइस पिछले दिन की रेंज से बाहर है, तो ये क्या कहलाएगी, आउटसाइड गैप। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, आउटसाइड गैप। जनरली जो होती हैं आउटसाइड गैप्स जो हैं वो आपको एक रेंज बाउंड मार्केट में ज़्यादातर नज़र आते हैं। उसमें होता यह है कि मान लो ये प्राइजेस जो हैं एक रेंज में चल रही हैं, जहाँ पर कि आपका ऊपर एक रेजिस्टेंस है और एक नीचे सपोर्ट है। हम लोगों ने प्रीवियस सेशन में देखा था कि रेंज मूवमेंट जो होती हैं वो कैसी होती हैं, जहाँ पर कि आपका ये जो होता है आपका प्राइस जो बैंड जो होता है, प्राइस बैंड जो होता है कंपैरेटिवली लार्जर होता है, यानी कि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस जो होता है थोड़ा सा बड़ा होता है, 15 20 25 रुपए 100 रुपए, जो भी डिपेंड करता है कि उसका जो है वो स्टॉक का प्राइस क्या है ना। तो ये हुआ। और दूसरा होता है स्क्वीज। स्क्वीज में भी जो है एक्चुअली रेंज बाउंड मूव ही होता है, लेकिन उस केस में क्या होता है, ये जो रेंज का जो वैल्यू जो है वो छोटा हो जाता है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं इसी को रिपीट यदि कर दूं यहाँ पर इस तरह से, कुछ ऐसे कि मान लो प्राइजेस जो हैं वो केवल और केवल आपकी जो है वो इस लाइन में मान लो घूम रही हैं, तो अब क्या होगा, है ना। फॉर एग्जाम्पल यदि हम
ये लाइन और इस लाइन के बीच के ही यदि रेंज को लेके चल रहे हो, मान लो प्राइसेस यहीं पर घूम रही होती हैं, तो ये स्क्वीज कहलाएगा। लेकिन ये बड़ी रेंज होने के लिए की वजह से, बड़ा प्राइस जो है मूव होने की वजह से जो है ये रेंज कहलाता है। तो आउटसाइड गैप क्या होता है, जनरली जो है वो प्राइस रेंज जो है उसके ऊपर या नीचे हमको नजर आता है, या स्क्वीज के ऊपर या नीचे नजर आता है। जब ओपन प्राइस जो होती है उस पर्टिकुलर रेंज के बाहर खुलता है। अब यहाँ पर कैंडल का कंसेप्ट जो है वो सेकेंडरी हो गया। अब जिस चीज ने जो है वो लीड ली है वो क्या है, रेंज, प्रीवियस रेंज, है ना। जैसे कि हम लोगों ने जो बिगिनर्स सेशन में जिन लोगों ने अटेंड किया हुआ है, वहां पर उनको एक कंसेप्ट जो है वो बताया गया था कि आपका मान लो कोई प्राइस जो है वो रैली कर रहा है इस तरह से, और रैली करने के बाद में वो क्या बनाता है, एक बेस बनाता है। और बेस बनाने के बाद में या तो वो कंटिन्यू करता है अपनी रैली, है ना, या फिर क्या करता है वो कि ये जो है उसको निगेट कर देता है कि भाई रैली, फिर उसने बेस बनाया, है ना, फिर बेस बनाने के बाद में फिर क्या हो गया, वो ड्रॉप हो गया, उसने जो कंटिन्यू नहीं किया, तब वो ये इस तरह से बनेगा, है ना, इस तरह से वो सीन आ जाएगा। यहां पर जो होगा रैली बेस रैली। अब क्या होगा कि यहां पर ये जो बेस जो बनेगा, ये बेस जो होगा या तो स्क्वीज होगा या रेंज बनेगा, सिंपल। ये जो होगा ना, ये बेस जो बनेगा, या तो ये होगा आपका स्क्वीज, जो ये होगा या तो रेंज बनेगा या क्या बनेगा, स्क्वीज बन जाएगा, ये चीज यहां, है ना। तो ये जो सिनारियो जो है, ये इन दोनों में से कोई एक यहाँ पे आपको नजर आएगा। और जब प्राइसेस जो हैं इनके ऊपर या नीचे जब खुलना शुरू होती हैं, फॉर एग्जांपल यदि स्क्वीज वाला क्रिएट हुआ यहाँ पर और प्राइसेस मान लो यहाँ से शुरुआत हुई, तो ये गैप आउटसाइड गैप हो गया। यहाँ पर ये क्या हुआ, मान लो ये इस स्क्वीज के ऊपर यदि खुलता है, तो ये क्या हो गया आपका, है ना, आउटसाइड गैप हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है सिनारियो जो है आपको हमेशा आउटसाइड गैप में नजर आएगी। जब ओपन प्राइस जो होती है किसी रेंज या स्क्वीज के बाहर खुलती है, चाहे वो ऊपर खुले तो उसको हम गैप अप ओपनिंग बोलते हैं, आउटसाइड गैप अप ओपनिंग, और ये आउटसाइड गैप डाउन ओपनिंग। क्लियर। तो अब हमारे पास में दो तरह के गैप्स आए हैं, एक तो इनसाइड गैप और एक आउटसाइड गैप। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। इस पिक्चर को जो है मैं थोड़ा सेव कर लेता हूं, ताकि उसमें क्या होगा कि ये बाद में रेफरेंस में काम आएगा। होल्ड कीजिए। तो अब ये चीज जो है वो सेव हो चुकी है, ठीक है। तो अब ये जो चीज हम यहाँ से इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो समरी जो है इनसाइड गैप की और आउटसाइड गैप की आपको मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने बता दी। अब इनकी विशेषताएं क्या होती है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। अब इसकी कुछ चीजें जो है बहुत खास हैं, दोनों ही चीज केसेस में जो चीज जो डिफरेंशिएट करती हैं दोनों को, वो आपको इस पर्टिकुलर स्लाइड में जो ग्रीन कलर में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये चीज डिफरेंशिएट करती है। हम देखते हैं क्या होता है। इनसाइड गैप में क्या होता है कि ओपन प्राइस रिमेन्स विद इन द रेंज ऑफ द प्रीवियस डे और वीक, जो कि मैंने आपको एग्जांपल में बताया। इंडिकेट सेंटिमेंट इज स्टिल अनचेंज्ड। अब आप यहाँ पर जो है पिछले जो प्रेजेंटेशन का एक रिकॉल कीजिए, मैंने कहा था कि हमेशा प्राइजेस जो हैं, नेक्स्ट डे की प्राइजेस जो होती हैं, वो अपनी पिछली मेमोरी को जो है साथ में लेके आती है, ठीक है, जब उनका पुनर्जन्म होता है। जो हम लोग जो है ह्यूमन बॉडी जो है वो भी जो है बेसिकली जो है वो एक पिछले जन्मों की मेमोरी है, और हम इस जन्म की मेमोरी को क्रिएट कर रहे हैं टू कैरी फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट लाइफ। वैसे ही जो होता है वो जो है आपका कैंडलस्टिक पैटर्न्स, यानी कि जो प्राइजेस जो होती हैं वो पिछले दिन की प्राइजेस को जो है वो कैरी फॉरवर्ड करती है, उसकी मेमोरी कैरी फॉरवर्ड करती है और आगे जो है वो निकलती है। और इसीलिए जो है गैप ट्रेडिंग में एक कंसेप्ट जो है कि ट्रेंड जो है, यानी कि गैप्स जो होते हैं
वो पिछले दिन के ट्रेंड को जो है वो फॉलो करेगा, यानी कि पिछला दिन का ट्रेंड यदि पॉजिटिव है तो आज का दिन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, तो चूंकि सेंटीमेंट बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होता है, तो हम लोग को ट्रेड कैसे करना है इसको, कि एंट्री एट वीवैप और सम पाइवोट, यानी कि आपको क्या करना है कि जब मान लो इनसाइड गैप यदि वो हुआ, मान लो वो इनसाइड गैप मान लो हुआ, जैसे कि ग्रीन कैंडल इनसाइड गैप यदि हुआ, और यदि हम ये मान के चले कि यहाँ पर जो है ये मोरी बोजू कैंडल नहीं है, गैप अप होने के बाद में कुछ डाउन नीचे आया, और डाउन नीचे आने के बाद में हमको पड़ता है अपने चार्ट के ऊपर कि यहाँ पर एक जो है एक वीकली सपोर्ट जो है वो बैठा हुआ है, या कोई पाइवोट जो है वो बैठा हुआ है किसी तरह का, है ना। तो यहाँ पर जो है जाकर के वो टच करेगा, आपको यहाँ पर एंट्री लेनी है। स्टॉप लॉस आपका पिछले कैंडल का लो उसके नीचे रखेंगे, और इसको जो हम अप साइड में प्ले करेंगे इस सेटअप, है ना। दूसरे सेटअप में क्या होगा कि सेम थिंग, यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस होगा, मान लो कोई हमको पाइवोट मिलता है तो जरूर उसको रिस्पेक्ट करेगा वो, क्योंकि गैप डाउन है, सेंटिमेंट जो है वो चेंज हो गया, क्योंकि ये जो है गैप डाउन था, ये जो है पिछले दिन का जो है ट्रेंड जो है इसको फॉलो नहीं कर रहा है, ये जो उसने जो है कंप्लीटली जो है वो उसको नेगेट करके नीचे जो है वो मूव दिया है। तो इस केस में अब जो पुराना जो सपोर्ट जो था जहां से कि प्राइसेस ओपन होकर के ऊपर गई थी, अब वो बन गया रेजिस्टेंस। तो उस केस में ओपन गैप डाउन ओपन होने के बाद में चांसेस हैं कि वो यहाँ पर रेजिस्टेंस ले, और यहाँ से फिर वो डाउनवर्ड जो है वो डाउन साइड मूव वो बनाना शुरू कर दे। ये हुआ इनसाइड जो है गैप का सिनेरियो। अब यदि गैप डाउन मैसिव होता है, यानी कि पिछले डे के कंप्लीट जो है वो बाहर होता है, तो उस केस में क्या करेगा कि मान लो ये सेटअप यदि है जहां पर कि क्लीन शेप्ड आपका बॉटम है तो वो पिछले दिन के रेजिस्टेंसेस को आकर के टच करेगा, है ना। तो आपको जो है बेसिकली अब ये रेड कैंडल ऐसा नजर नहीं आएगा, एक्चुअली ये भी जो है वो ग्रीन कैंडल बन जाएगा। इनफैक्ट अब जो है वो ग्रीन कैंडल बन गया, गैप डाउन होने के बाद में यदि वो ऊपर यदि आ रहा है और ऊपर यदि क्लोज दे रहा है तो फिर वो आपका जो है ग्रीन कैंडल बनेगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है ना। तो ये हुई बात इसकी कि भाई आपको जो है इनसाइड बार जो है उसको ट्रेड करने के लिए डेली पाइवोट या वीकली पाइवोट या हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंसेस उनका सहारा आपको लेना पड़ेगा, है ना। फाइंड कॉन्फ्लुएंस विद सम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस इफ गेट। अब यहां पर कॉन्फ्लुएंसेस का खेल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो वीवैप हो प्लस पाइवोट हो प्लस आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस हो, पाइवोट्स हो प्लस आपका कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल हो, या फिर फिबोनाची रिट्रेसमेंट प्लस जो है कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में कोई ट्रेंड लाइन का जो है कॉन्फ्लुएंस आ रहा हो। तो कॉन्फ्लुएंस यदि आपको यदि मिलता है तो वहां पर आपका कन्विक्शन जो है एंट्री का वो बढ़ जाता है। आपको वो चीजें तलाश करनी है, यदि मिलती हैं तो बहुत अच्छा है, उस दिन आप थोड़ा सा बड़ी क्वांटिटी में भी काम कर सकते हैं, अपना रिस्क रिवॉर्ड जो है उसको मेंटेन करते हुए आप थोड़ी ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हुआ कहानी इनसाइड गैप को ट्रेड करने की, और इसको मैंने एक नाम दिया है हुआ है म्यूटिनी इनसाइड द जेल। अब प्राइजेस जो होती हैं वो ट्रैप हो गई, प्राइजेस जो हैं वो एक जेल के अंदर ट्रैप हो गई हैं इनसाइड गैप में। पिछले दिन का कैंडल था नंबर 1 डे, नंबर 2 जो है ओपन यहाँ पर हुआ, तो अभी पिछले दिन के रेंज में ट्रैप हो गई, तो बेसिकली जेल के अंदर है और उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तो इसके लिए इसको जो है जो सब्जेक्टिविटी देने के लिए नाम दिया हुआ है म्यूटिनी इनसाइड द जेल, यानी कि जेल के अंदर विद्रोह हुआ है और ये प्राइजेस जो है उस पिछले दिन की रेंज से बाहर भागने की कोशिश करेंगी। और यही गैप जो होते हैं, इनसाइड गैप जो होता है, ये सबसे डिफिकल्ट होते हैं ट्रेड करने के लिए, सबसे डिफिकल्ट, क्योंकि आपको कुछ भी पता नहीं होता है कि अब इसने अंदर तो ओपन तो दे दिया, लेकिन अभी करेगा क्या, क्या कोई सपोर्ट लेकर के ऊपर जाएगा या रेजिस्टेंस लेकर के नीचे आएगा,
उस केस में जो है आपके डेली पाइवोट जो है ज़्यादा सिग्निफिकेंट हैं, या फिर जो है वीकली पाइवोट मान लो कि प्रेजेंट है वहाँ पर, वो सिग्निफिकेंट है, या मंथली कोई पाइवोट है वो सिग्निफिकेंट है, या कोई पिछला पुराना हिस्टोरिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस वो सिग्निफिकेंस अपना जो है वो ले रहा है। उस दिन कौन सी चीज़ जो है उसको ज़्यादा प्रभावित कर रही है, इस चीज़ का निर्णय जो है करना कितने बार कमोवेश बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए जो इनसाइड गैप जो होते हैं उनको ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आउटसाइड गैप में क्या होता है कि हमको क्लियरली पता है कि सेंटिमेंट चेंज हो गया। इनसाइड गैप में जो है वो सेंटिमेंट चेंज नहीं होता है, तो कैरी फॉरवर्ड होता है, और दिन में हमको कंफ्यूज करते रहता है कि भाई अब सेंटिमेंट चेंज जो है वो ड्यूरिंग द डे होगा या फिर जो है पिछले दिन का कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये बहुत ट्रिकी होता है। तो सबसे खतरनाक जो चीज़ जो होती है, या सबसे जो है वो डिफ़िकल्ट जो ट्रेड करने के लिए जो गैप जो होते हैं, वो जो है वो इनसाइड गैप होते हैं। फिर आउटसाइड गैप में क्या होता है कि ओपन प्राइस जंप्स आउटसाइड द रेंज ऑफ प्रीवियस डे। ये आपको मैंने एग्जांपल में, अभी पिक्टोरियल एग्जांपल में मैंने आपको बताया है। और इसका मतलब कुछ नहीं होता है कि जो है कंट्रोल जो है चेंज हो गया, कंट्रोल जो है वो चेंज हो गया, कि यदि गैप अप यदि हुआ और पिछले दिन में यदि आपका पिछला दिन जो था वो एक बुलिश डे था, है ना, तो कंट्रोल जो है अभी किसके हाथ में है, वो बुल्स के हाथ में। यहाँ पे कंट्रोल चेंज नहीं हुआ। लेकिन यदि वो गैप डाउन यदि हो गया, पिछला दिन आपका जो है शानदार एक बुलिश डे था जिसमें कि जो है 4% 5% का जो है रैली आया, और आज जो है उसने पिछले दिन के ओपन प्राइस लो से नीचे गैप डाउन दे दिया, यानी कि अब कंट्रोल जो है वो बेयर्स के हाथ में आ गया है, कंट्रोल पूरा चेंज हो गया है। और आउटसाइड गैप में आपको मैंने जैसा बताया था कि ये हमेशा किस जगह पर पाए जाते हैं, जहां पर कि रेंज बनती है, स्क्वीज बनता है ना। अब ये रेंज और स्क्वीज के अंदर जो है वो कहानी क्या होती है कि झगड़े होते हैं। जब रेंज मतलब क्या होता है, स्क्वीज का मतलब क्या होता है कि ये जो है बैटल फील्ड होता है बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। ये वो जगह होती है जहां पर कि बुल्स जो है वो कंट्रोल करना चाहते हैं प्राइजेस को, बेयर्स भी कंट्रोल करना चाहते हैं प्राइजेस को, और जो जीतता है वो सिकंदर बन जाता है और वो उसके हाथ में कंट्रोल आ जाता है। समझे ना मेरी बात, कि भाई स्क्वीज के अंदर जो है या रेंज के अंदर जो है लड़ाइयाँ हुई, इस तरह से लड़ाइयाँ होती रहती हैं कि ना तो प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर उसको पटक करके नीचे ले आएंगे, जब नीचे आएगा तो बुल्स खींच करके उसको ऊपर ले जाएंगे, है ना। ये झगड़े चलते रहते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं। वो 1 2 3 4 5 6 7 दिनों तक चलते हैं। और इसीलिए जो है वो हमारा जो पैटर्न जो है, जिसको हम NR4 NR5 NR7 जो बोलते हैं, NR का मतलब होता है नैरो रेंज, तो नैरो रेंज 4, यानी उसको हम इंडिकेट जो डिनोट करते हैं NR4 से। ये जो हिस्टोरिकली देखा गया है कि चौथे दिन, पांचवें दिन और सातवें दिन जो है प्राइजेस जो हैं अपने रेंज से बाहर जो है वो ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए कभी NR2 आप कभी नहीं सुनेंगे, NR1 नहीं सुनेंगे, है ना, NR4 नहीं सुनेंगे, NR6 नहीं सुनेंगे, NR4 सुनेंगे लेकिन NR6 नहीं सुनेंगे। तो ये जो है जनरली चौथा दिन, पांचवा दिन और सातवां दिन, ये 3 सिग्निफिकेंट डेज होते हैं जब प्राइजेस जो है वो जो है कोशिश करती हैं कि रेंज से या स्क्वीज से बाहर आए, उस बैटल फील्ड से बाहर आते हैं। और जब वो बाहर आती हैं तब आपको हमेशा आउटसाइड गैप मिलेगा, यानी कि अब सेंटिमेंट जो है वो किसी एक पार्टी के हाथ में आया है। यहाँ झगड़े झाटे वाली पूरी बात खत्म हो गई, है ना। तो ये हो गया आउटसाइड गैप। तो यहाँ पर जो होगा, जब भी इस तरह का कोई सिनेरियो आता है, यह महान दृश्य जब उत्पन्न होता है कि भाई जो बैटल फील्ड से जो है बाहर प्राइजेस निकल के आ गई, तो वो जेल ब्रेक हो गया। पहले अंदर म्यूटिनी थी, अब ये जेल ब्रेक हो गया। अब जो है वो कंट्रोल जो है किसी और के हाथ में आ गया, जेल ब्रेक करके प्राइजेस बाहर आ गई हैं। उस केस में हमको जिस तरफ जो है प्राइस ओपन हुआ, यदि गैप अप हुआ, तो आपको कोशिश ये करनी है कि अब आपको उस दिन लॉन्ग साइड में प्ले करना है। रिपीट, यदि रेंज के बाहर यदि हमको गैप अप यदि ओपन मिलता है तो आपको केवल और केवल लॉन्ग साइड में प्ले करना है। नंबर 2, यदि आपका गैप डाउन यदि मिलता है रेंज के बाद में, रेंज मूवमेंट 2-3 दिनों के बाद में, तो आपको डाउन साइड में ही प्ले करना है उस पर्टिकुलर डे में। ठीक है, ये बहुत क्लियर होना चाहिए आपके दिमाग में। ये जो है अलग होता है इनसाइड डे को ट्रेड करने से। ठीक है, ये बात हुई। अब हम आते हैं इसके
दूसरे तरह के टाइप्स के ऊपर। मैंने कहा था कि ये तो दो मेजर हुए, अब उसके बाद में हमारे पास में कुछ सब ग्रुप्स हैं, यानी कि सब टाइप्स भी होती हैं। वो क्या होती हैं, आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। हम्म, अब यहाँ पर जो है चार तरह के गैप्स होते हैं। एक होता है कॉमन गैप, फिर दूसरा होता है ब्रेक अवे गैप, तीसरा होता है रन अवे गैप, और चौथा होता है एग्जॉशन गैप। ये चार गैप है। नंबर वन कॉमन गैप, नंबर टू ब्रेक अवे गैप, नंबर थ्री रन अवे गैप, नंबर फोर एग्जॉशन गैप। इसको मैंने जो है दो भागों में बांटा है, इन चारों को जो है दो सब कैटेगरीज में बांटा है ना। वो कैटेगरीज क्या है कि ये जो कॉमन गैप जो होता है या ब्रेक अवे गैप जो होता है, वो आपको एक रेंज बाउंड मार्केट में मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में दिखाया, पिछले जो पेक्टोरियल में मैंने दिखाया। ठीक है। और दूसरा जो होता है आपको एक ट्रेंडिंग मार्केट में दिखाएगा। ठीक है। ट्रेंडिंग मार्केट यानी कि जब आपकी प्राइसेस जो हैं वो किसी एक डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही हैं डेली चार्ट के ऊपर। हमने प्रीवियस सेशन में देखा था कि ट्रेंडिंग मार्केट की जो है हम लोग उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि जब प्राइसेस जो हैं डेली चार्ट के ऊपर एक डायरेक्शनल मूव में जो है वो घूम रही हैं, यानी कि यदि अप मूव है तो हायर लोज एंड हायर हाई फॉर्मेशन में चल रही हैं, और यदि वो मूव डाउन साइड में है, यानी ट्रेंड यदि डाउन साइड में है, तो वहां पर जो है वो लोअर हाइज एंड लोअर लो सिनारियो जो है वो क्रिएट होता है ना। तो कॉमन गैप जो होते हैं और ब्रेक अवे गैप जो होता है वो होता है आपका रेंज बाउंड मार्केट। अब इसका मतलब क्या होता है हम आगे समझेंगे। इसमें आप ये देखेंगे कि मैंने एक और जो है एक कैंपस लैंग्वेज में यूज कर रहा हूँ, है ना, गैप एंड ग्रेविटी एंड गैप एंड गो। ये दो वर्ड्स आप देख रहे हैं इसमें बहुत कॉमन है ना चारों जगह पर। गैप एंड ग्रेविटी का मतलब होता है कि जो है प्राइजेस जो हैं वो ऊपर खुली और वापस से जो है वो बेरिश डे में चेंज हो गई, है ना। गैप एंड गो का मतलब होता है कि प्राइसेस ओपन हुई और वो अपसाइड में उन्होंने अपना मूव ले लिया। ठीक है। तो ये ब्रेक अवे गैप हो गया। तो गैप एंड ग्रेविटी एंड गैप एंड गो। अब गैप एंड गो का मतलब ये नहीं कि केवल अपसाइड में ही जो है गो करेंगे, यदि वो गैप डाउन यदि ओपन यदि है तो वो डाउन साइड में ही गो करेगा, उस तरफ ही जो है वो मूव कंटिन्यू करेगा, तो उसको गैप एंड गो बोला है। एंड गैप एंड ग्रेविटी का मतलब ये होता है कि जहां पर गैप हुआ उसके अगेंस्ट में जो है वो काम करेगा। ठीक है ना। अब आता है रनअवे गैप। अब रनअवे गैप में क्या होता है कि ये गैप एंड गो टाइप का ही होता है, और इसमें क्या होगा कि वो प्राइजेस जो है दिन भर उसी डायरेक्शन में घूमती रहेंगी। ब्रेक अवे गैप में क्या होगा कि उस खुलेगा तो सही, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर टक्कर मार करके वापस जो है वो आ जाएगा अपनी जगह पर जहां से वो ओपन हुआ था। ठीक है। और इसके बारे में हम डिटेल में और जाते हैं अभी, लेकिन ये जो है वो मेजर यही है कि भाई मान लो ब्रेक अवे गैप यदि है तो वो होगा आपका, अब चूंकि रेंज बाउंड मार्केट में हुआ है, इसका मतलब है कि वो जनरली इनसाइड गैप होगा। अब इनसाइड गैप जो होगा वो एक बार जाकर के किसी न किसी रेजिस्टेंसेस के ऊपर या किसी सपोर्ट के ऊपर जाकर के वो टर्न कर लेगा, तो वो ब्रेक अवे गैप हो गया। अब रन अवे गैप में क्या होता है कि इसको जो है वो जॉनी वॉकर जो है अपना रेड लेवल उसका जो सिंबल है कि कीप वॉकिंग, यानी कि उसी तरफ जो है वो घूमना शुरू मतलब चलना शुरू करता है, और दिन भर जो है वो एक ट्रेंडिंग मार्केट रहता है उस दिन का। तो रन अवे गैप वो होता है, और ये बहुत कॉमन होते हैं। रन अवे गैप जो होते हैं बहुत कॉमन होते हैं, और ये आपको हमेशा ट्रेंडिंग मार्केट में मिलेगा। और ये पिछले दिन का ट्रेंड फॉलो करता है, और जो है मान लो पिछले दिन का कैंडल जो है वो ग्रीन है तो आज भी वो ग्रीन चलेगा और पिछले दिन के रेंज को कंप्लीट करेगा, यानी कि जो उसका एटीआर जो है वो जनरली उस एटीआर के आसपास जो है आपको आज का मूव देगा। तो इसीलिए लिखा हुआ हैपेंस इन अ रिसेंटली स्टार्टेड ट्रेडिंग कंडीशंस, इट इज अ कंटिन्यूएशन सेटअप। अच्छा, अब ये रनअवे गैप जो होता है वो जो जहां पर की ट्रेंड अभी शुरू ही हुआ है, 2-3 दिन हुए हैं, एक आधी हफ्ता हुआ है, वहां पर आपको मिलेगा, है ना। और एग्जॉशन गैप जो होता है ये जो है उल्टा होता है गैप एंड ग्रेविटी। यदि गैप अप हुआ है तो वो नीचे घुस जाएगा, और यदि गैप डाउन हुआ है तो वो ऊपर भाग जाएगा। लेकिन इस तरह के गैप जो होते हैं वो बॉर्न टू डाई होते हैं, यानी कि गैप
हुआ तो सही, लेकिन वो कंटिन्यूस डायरेक्शन में कभी नहीं करेगा जिस डायरेक्शन में वो ओपन हुआ है। वो दिन आगे मर जाएगा, यानी कि जहाँ से वो ओपन हुआ है उसके अगेंस्ट में जो है डायरेक्शन में वो लेकर के, और जो है उसको पूरा मूव को खत्म कर देता है, वो उस पूरे गैप को फिल कर देता है। तो ये है जॉनी वॉकर रीचिंग टू द फिनिश लाइन। इसको जो है हम लोगों ने कैंपस लैंग्वेज में एक तरह से एक नोशन दे दिया है कि जॉनी वॉकर जो है चल रहे थे रनअवे गैप में, और जॉनी वॉकर जो है वो आकर के टक्कर जो है वो फिनिश लाइन पे पहुंच गए हैं एग्जॉशन गैप। और एग्जॉशन गैप्स जो होते हैं वो आपको हमेशा मिलते हैं प्रोलॉन्ज्ड ट्रेडिंग कंडीशंस में। अब देखिए यहाँ पे दो डिफरेंस हैं कि रनअवे गैप को जो है आपको रिसेंटली स्टार्टेड ट्रेडिंग कंडीशंस में मिलेंगे, और एग्जॉशन गैप जो होगा वो प्रोलॉन्ज्ड ट्रेंडिंग कंडीशंस में मिलेंगे। और रनअवे गैप जो होता है वो एक कंटिन्यूशन सेटअप होता है, और एग्जॉशन गैप जो होता है वो एक रिवर्सल सेटअप होता है। ठीक है ना? इसीलिए चूंकि रिवर्सल सेटअप है, यानी कि ओपन के मान लो गैप अप है तो प्राइजेस जो है दिन में जो है उस मान लो गैप अप है तो पूरा डाउन साइड में ट्रेंड करेंगी, और यदि गैप डाउन है तो वो अप साइड में ट्रेंड करेंगी। तो अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करती हैं। ठीक है ना? यानी कि ग्रेविटी इन द सेंस कि अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द गैप। तो वो एग्जॉशन गैप जो होता है गैप एंड ग्रेविटी टाइप का जो है वो सिनारियो होता है, और रनअवे गैप जो होता है वो गैप एंड गो टाइप का सिनारियो होता है, यानी कि जिस तरफ वो प्राइस खुली गैप अप यदि है तो दिन भर वो उसी तरफ जो है चलती रहेंगी, है ना? और वो जनरली जो है जब ट्रेंड शुरू ही हुआ होता है या फिर 4-5 दिन हुए होते हैं या 1-2 हफ्ते हुए होते हैं तब ही जो है आपको रनअवे गैप मिलेंगे। लेकिन मान लो 2-3 महीना हो गया, महीना भर हो गया है, या फिर जो है वो लगातार 10-15 दिन जो है वो स्टॉक चल ही चल रहा है, और सडनली जो है हमको देखते हैं कि रोज जो है वो जो है कॉमन गैप बना रहा है, रोज जो है वो इनसाइड गैप बना रहा है पिछले 15 दिनों में या 1 महीने में या 2 महीनों में। आज सडनली जो है उसने आउटसाइड गैप दे दिया ट्रेंड की डायरेक्शन में। मान लो वो अपसाइड में मान लो कोई स्टॉक है ना? मान लो कि एक मिनट हम थोड़ा सा इसको ऐसा समझते हैं कि मान लो कोई आपका स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में है इस तरह से, ठीक है, चला जा रहा है। अब जो है सडनली जो है हम ये देखते हैं कि अभी देखिए यहाँ पर ये पहले दिन का कैंडल है, ये गैप डाउन ओपनिंग हुई और पिछले दिन का हाई खा करके ये ऊपर क्लोज हुआ। फिर ये थर्ड कैंडल फिर गैप डाउन ओपनिंग, पिछले दिन का हाई खा करके ये ऊपर क्लोज हुआ। तो हम इस चीज की कल्पना करें कि ये फॉर्मेशन है पिछले 10-15 दिनों से चल रहा है। अब क्या हुआ, आज जो है सडनली हम ये देखते हैं कि वो गैप उसने यहां पर दे दिया, यहां पर दे दिया एकदम। तो अब ये क्या हुआ, ये अब एग्जॉशन गैप की निशानी है। अब ये जो प्राइजेस जो होंगी वो है इस तरह से मूव नहीं करेंगी, इस तरह से जो है वो मूव नहीं करेंगी कि भाई वो ऊपर निकल गई, ये नहीं करेगी। वो क्या करेगी, इसका ठीक उल्टा कि गैप अप बूम डाउन। ये जो है गैप एंड ग्रेविटी हो गया। तो प्रोलॉन्ज्ड कंडीशंस जब जो होंगी, यानी कि जब लंबा समय तक जो है मार्केट ट्रेंड में है और उसके बाद में सडनली हमको उसके बावजूद भी गैप अप यदि मिलता है, तो ये जो है निश्चित तौर पर मरने के लिए गया है। और ये सिनेरियो तब क्रिएट होता है जब कोई गंदी अच्छी न्यूज़ जो है पैनिक सेलर्स, पैनिक जो है वो बायर्स वो कुछ ना कुछ यहाँ पे खुराफात करते हैं, तभी हमको ये नज़र आता है। तो ये हुआ आपका वो एग्जाम्पल जिसमें कि हम लोगों ने जो एग्जॉशन गैप जो है वो कैसे क्रिएट होते हैं वो देखा, है ना? रनअवे गैप जो होगा वो क्या होगा, रनअवे गैप जो होता है वो जनरली कॉमन गैप होगा। नंबर 2 वो इनसाइड गैप होगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यूशन सेटअप है। वो क्या है, एक कंटिन्यूशन सेटअप है, पिछले दिन की ट्रेंड को फॉलो करने वाला सेटअप है रनअवे गैप। ठीक है, कॉमन गैप्स क्लियर हो गया कि जो है वो गैप एंड ग्रेविटी टाइप का होता है कि भाई वो निकला तो सही, गैप दिया तो सही, लेकिन खत्म हो जाएगा उसे। दूसरा है ब्रेक अवे गैप, जो कि जो है वो एक बार बाहर तो निकला लेकिन जाकर कहीं ना कहीं वो थोड़ा छोटा मुंह दे करके फिर वो खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक है ना, भले वो लौट के ना आए लेकिन वो रुक जाएगा। ठीक है, अब इन जो है चारों के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में और आगे चलते हैं। अब इसके पहले कि हम उन चारों पांचों तरह के जो गैप्स जो हमने अभी देखे
कि कॉमन गैप है, ब्रेक अवे गैप है, एग्जॉशन गैप है ना, ये जितने भी गैप्स जो हम लोगों ने अभी देखे, ठीक है ना, कि कॉमन गैप्स हैं, ब्रेक अवे गैप्स है, रन अवे गैप्स हैं एंड एग्जॉशन गैप्स हैं। अब इसकी एनाटॉमी जो है जब हम समझेंगे वो थोड़ा सा एक लंबा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा लेंथी टॉपिक है, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा उसको एक्सप्लेन करने में, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हर जो है वो एक एजुकेशन बैकग्राउंड से हैं, एक एक्सपीरियंस बैकग्राउंड से हैं। तो हो सकता है कि यदि मैं तेजी से इसको कवर करने की कोशिश करूं तो कुछ लोगों को समझ में ना आए। सेशन की शुरुआत में ही जो है मैंने कहा था कि आज का सेशन मैं थोड़ा सा स्लो लूँगा, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, ताकि जो है भले वीडियोस जो है नंबर ऑफ वीडियोस हमारे बढ़ जाएंगे, लेकिन जो है वो कंसेप्ट जो है वो आपके दिमाग में अच्छे से उतर जाएगा। मैं चीज़ों को रिपीट भी करता हूँ ताकि जो उसके हाईलाइटेड पॉइंट जो है वो आपके दिमाग में जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ तभी जो है वो एंट्रेंच हो जाएं, घुस जाएं, बैठ जाएं, आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको उसको मेमोराइज करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो ये वजह है। मैं इसकी अगली स्लाइड लेकर के इस प्रेजेंटेशन को मैं अभी आज क्लोज करूंगा, और जो टाइप्स ऑफ गैप्स का जो एनाटॉमी जो है वो अगले प्रेजेंटेशन में लूंगा, उसका रिकॉर्डिंग जो होगा वो अगले प्रेजेंटेशन में आएगा। क्लियर? चलिए, तो हम लोगों ने जो कैंपस लैंग्वेज जो यूज की थी, गैप एंड गो एंड गैप एंड ग्रेविटी, उसको थोड़ा सा मैंने एलाबोरेट किया है यहाँ पर कि व्हाट फर्दर मूव डू वी एक्सपेक्ट पोस्ट गैप ओपनिंग। गैप अप ओपनिंग होने के बाद में हम किस तरह का मूव जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। केवल दो, या तो गैप एंड गो होगा या गैप एंड ग्रेविटी होगा। गैप एंड गो का मतलब ये है कि जिस भी डायरेक्शन में वो गैप अप हुआ है या गैप डाउन हुआ है, पूरा दिन जो है उसी डायरेक्शन में जो है मार्केट कंटिन्यू करेगा। हम इसको बोलते हैं जनरली सिंगल टाइम फ्रेम, सिंगल टाइम फ्रेम मूव जो है। जो लोग जो हैं आपका वॉल्यूम प्रोफाइल या मार्केट प्रोफाइल से ये कंसेप्ट से परिचित हैं, उनके लिए ये पर्टिकुलर टर्म जो है वो बहुत कॉमन होगी कि वन टाइम फ्रेम का मतलब होता है कि पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन में, या फिर है लोअर हाइज लोअर लो फॉर्मेशंस में प्राइजेस जो हैं वो दिन भर मूव करती हैं या फिर 2-3 दिन मूव करती हैं। तो उस केस में जो है आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस जो है वो ज़्यादा ध्यान नहीं रखने होते हैं, आपको केवल जो है सिंपल 8-18 का जो है वो मूविंग एवरेज डालने हैं 20 मिनट के चार्ट पे, 45 मिनट्स के चार्ट पे, घंटे भर के चार्ट पे, उसको ट्रेड करते हैं। और गैप एंड ग्रेविटी में क्या होता है इसका ठीक उल्टा, गैप तो हुआ, गैप अप हुआ, लेकिन प्राइजेस जो है वो रिवर्स हो जाती है। तो गैप एंड ग्रेविटी में जनरली गैप फिल हो जाता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको गैप एंड गो में जो सिनारियोस बड़े कॉमन नजर आते हैं कि ओपन इज इक्वल्स टू लो या फिर ओपन इज इक्वल्स टू हाई, ये सिनारियो बहुत कॉमन नजर आएगा, है ना। तो इस केस में हमको क्या करना है कि जब ऐसा ओपन इज इक्वल्स टू लो होता है या ओपन इज इक्वल्स टू हाई होता है तो इजी होता है ट्रेड करना। लेकिन यदि ओपन इज इक्वल्स टू लो और ओपन इज इक्वल्स टू हाई नहीं है तो उस केस में वो जनरली कॉमन गैप होता है ना, इनसाइड गैप होता है। तो उसमें हमको ये देखना है कि कोई रिट्रेसमेंट पर वो भाई साहब पलट के आ जाए, पहले मान लो गैप अप है तो थोड़ा सा नीचे आ जाए और नीचे आकर के वीवेप को टच कर दें, किसी बाइबोट को टच कर दें, किसी पॉइंट ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो है वो टच कर दें, पिछले दिन की कोई इनिशियल बैलेंस है या आज का इनिशियल बैलेंस का लोअर पॉइंट है उसको टच कर दें, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ा हुआ है पुराना नया उसको टच कर दें, कोई मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है उसको जो है वो जाकर के गले मिलाएं, कोई ऑप्शन पेन लेवल है, ऑप्शन जो है वो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेवल जो है उसके आसपास मान लो कोई आ जाता है, यदि आप इंडेक्स ट्रेड कर रहे हैं तो, या कोई स्टॉक में भी आपका यदि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यदि कहाँ पड़ा हुआ है बना हुआ है, तो यदि वहां तक यदि प्राइसेस पलट के आती है और फिर वहां से फिर वो कंटिन्यू कर देती है ना, तो वो जो है गैप एंड गो का जो है ट्रेड करने का जो है वो एक सेटअप मिलता है कि भाई आपको एंट्री कहाँ लेनी है। अब चूंकि गैप अप जो है वो इतना कितने बार जो 1% 2% हो जाते हैं, तो यदि आपने उसी तरफ यदि एंट्री ले ली ये सोच के कि भाई कंटिन्यू करेगा पिछले दिन का, तो उस केस में आपके रिस्क जो है वो बढ़ जाती है, स्टॉप लॉसेस बहुत डीप हो जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा वेट करें, प्राइजेस को जो है इन रेफरेंस पॉइंट्स के ऊपर आने दें। अब ये जो है ये कहलाता है रेफरेंस पॉइंट्स, वीवैप, पाइवोट, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, इनिशियल बैलेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ऑप्शन पेन लेवल, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट लेवल, है ना। ये सब क्या है, ये रेफरेंस पॉइंट्स जो कि आपको
हम लोग अपने प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में हमारे दिमाग में हमेशा होते हैं, तो हम लोग इससे जो है ना वाकफ नहीं है। हम लोग बहुत जो है वो हमारे लिए बड़े कॉमन सी जो है वो रेफरेंस पॉइंट्स हैं जिनको कि हम ट्रेड करते हैं एवरीडे बेसिस पर। यदि हम लोग गैप ट्रेड नहीं भी कर रहे हैं, कोई दूसरा सेटअप ट्रेड कर रहे हैं, तो भी जो है हम लोग ये रेफरेंस पॉइंट जो है वो हमेशा रेफर करते हैं, हमेशा रेफर करते हैं। और जिसमें कि वीवैप को मैंने नंबर 1 पे रखा हुआ है डे ट्रेडिंग के हिसाब से। नंबर 2 पाइवोट्स, ये जो है ये तो हमारे देवता हैं, भगवान है। इनके बगैर यदि आपने काम किया तो आपके फंसने की जो है पूरी गारंटी है। ठीक है, अब आते हैं गैप एंड ग्रेविटी के ऊपर। गैप एंड ग्रेविटी क्या होता है? ये जो है रिवर्सल पैटर्न होता है, यानी कि उस दिन का गैप पूरा फिल हो जाता है। यानी गैप अप यदि हुआ तो गैप अप, सबसे पहली बात तो गैप अप जो होगा वो आउटसाइड गैप होगा, सबसे बड़ी बात है ना, आउटसाइड गैप होगा। गैप एंड ग्रेविटी वाला का चक्कर जो होता है ये हमेशा आउटसाइड गैप मिलेगा। गैप एंड गो में क्या होगा? आपको इनसाइड गैप मिलेगा। गैप एंड गो जो होगा जनरली इनसाइड होता है, एंड गैप एंड ग्रेविटी जो होता है जनरली आउटसाइड गैप होता है। जनरली, ठीक है। तो क्या होता है जब आउटसाइड हुआ, यानी गैप अप यदि हुआ तो फेड द स्पाइक एट द फेंस। अब ये स्पाइक ट्रेड जो है ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट जो है वो सेटअप है। जो लोग मुझसे पिछले 4-5 सालों से जुड़े हुए हैं वो मेरे स्टाइल से वाकिफ हैं, जिन्होंने मुझे जो है बहुत करीब से ट्रेड करते हुए देखा है। ये मेरे सबसे फेवरेट जो है सेटअप्स में से एक है, जो कि हम शायद इस गैप ट्रेडिंग सेशन के बाहर जाकर के हमको उसको समझना होगा। यदि वो कहीं आता है हमारे कन्वर्सेशन में तो मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा। स्पाइक ट्रेड जितना पैसा देते हैं आपको, गैप ट्रेडिंग जितना पैसा देती है आपको, और कोई दूसरा सेटअप जो है आपको डे ट्रेडर को उतना पैसा नहीं देता। डे ट्रेडर के लिए स्पाइक ट्रेड या फिर गैप ट्रेड, जिसने उसके ऊपर मास्टरी हासिल कर ली उसके लिए पैसों की कमी नहीं इस मार्केट में। ट्रेड भर भर के पैसा बनेगा, उसमें रिस्क आपकी छोटी सी रहेगी और रिवॉर्ड जो होते हैं हमेशा जो है 1:4, 1:5, 1:6 यहां तक पहुंच जाते हैं। कंजर्वेटिवली हम लोग जो है 1:2, 1:3 पर जो है वो संतोष कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेडर जो है एज ए ट्रेडर हम लोगों को अपना लालच और अपना डर दोनों को काबू में रखना होता है। एक बार आपने लालच को थोड़ा सा काबू में न भी रखा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डर को जो है हमेशा काबू में रखो। और डर को काबू में रखने का केवल एक ही तरीका है, पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप मार्केट से तभी डरते हैं जब आपके पास में पोजीशंस जो होती हैं वो लिवरेज्ड होती हैं, आपकी औकात से बाहर जो आपका निवाला जब खा लेते हैं तो गले में अटक जाता है वाली हालत होती है। तो वो जो है बात निकली थी स्पाइक से, वो वर्ड जो स्पाइक जो है वो बड़ा फेवरेट वर्ड है, तो उसको मैं बाद में कभी इस सेशन में या फिर किसी दूसरे सेशन में जो है मैं उसको लूँगा। अब ये क्या होता है गैप एंड ग्रेविटी में, ये जो है वो आपके जो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे पहुंचती हैं प्राइजेस पहले। जैसे कि मान लो गैप अप हुआ और गैप अप होकर के आपको शुरुआत में आपको एक आभास देंगी मैं रन अवे गैप हूँ, मैं तो उसी तरफ चल रही हूँ जिस तरफ जो गैप अप ओपनिंग हुई है। लेकिन क्या होगा, कुछ दूर आगे जाकर के उसको रेफरेंस पॉइंट्स मिल जाएंगे, वीवैप मिल जाएगा, पाइवोट मिल जाएगा, जो अभी हमने डिस्कस किए। वहाँ पर जाके प्राइजेस जो है पलट जाएंगी, और पलटने के बाद में वो अपना ओपन जो होगा उसके भी जो है मान लो गैप अप सिनेरियो है तो अपना जो है ओपन प्राइस छोड़ करके वो नीचे की तरफ जो आकर के पिछले दिन का हाई, आई रिपीट, पिछले दिन का हाई या पिछले दिन का क्लोज या पिछले दिन का 50% या पिछले दिन का लो, किसी भी एक जगह तक जो है वो ट्रेड कर सकता है। अब आपने देखा इसका पावर, अब आपने जो गैप एंड ग्रेविटी का पावर देखा कि कितना शानदार पावर होता है। ये एग्जांपल लेते हैं, ये आपके सामने एग्जांपल है। ये गैप अप जो है आपको यहां पर मिला, ठीक है, गैप अप जो है वो आपको जो है यहां पर मिला। इसने क्या किया कि पिछले दिन का हाई भी, ये हाई है, इसको रिटेस्ट मारा, पिछले दिन का 50% भी रिटेस्ट मारा और पिछले दिन के लो से भी नीचे आ गया। ये इतना बड़ा मूव होता है जनरली
कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहली बात, मान लो ये 2% या 3% यदि गैप अप इसने दिया तो 3% तो आपके फ्री में बन गए, क्योंकि मिनिमम आपका मूव कहाँ तक आएगा, मिनिमम मूव एटलीस्ट जो है पिछले दिन के ओपन सॉरी क्लोज या फिर पिछले दिन के हाई तक तो आएगा ही आएगा, तो वो पैसा तो आपका बन ही गया। और यदि वहां से वो कंटिन्यू यदि नीचे कर गया तो उस दिन का जो एटीआर जो भी रहेगा, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टॉक का जो एटीआर जो है वो 2% है, तो वो एडिशनल 2% हो गया, है ना। तो हमको क्या हुआ कि हमारा रिवॉर्ड क्या हुआ, हमारे रिवॉर्ड क्या हुए, रिवॉर्ड क्या हुआ, एक तो गैप, हमारे एग्जांपल में हम 3% लेके चलते हैं कि गैप जो है 3% ऊपर हुआ। उसके बाद में फिर क्या हुआ कि मान लो उस स्टॉक का एटीआर एवरेज टू रेंज मान लो हर दिन 2% वो चलता है, एक वो हुआ, यानी कि 2% गिरेगा भी गैप अप ओपनिंग के केस में, वो हुआ। तो टोटल जो है हमारे पास में मिनिमम कितना है, 5% तो चल के आई गया फ्री है। और इसके बाद में यदि वो पिछले दिन का जो है कैंडल उसको भी यदि उसने खा लिया और एटीआर यदि 2% का यदि है, तो आप इसमें 2% और जोड़ दो तो कितना हुआ, 7% हो गया। तो इस 7% में से यदि आप छीन कर यदि 5% भी यदि लेके आ जाते हैं और हर दिन आप यदि ये काम करते हैं, नहीं 5%, 7% का आधा 3.5%, 3%, चलो 3% भी आप रोज लेके आते हैं और एक ही जो है आपने स्ट्रेटजी पर आपने काम किया, इसी स्ट्रेटजी पे 20 दिन काम होता है, यानी क्या हुआ, स्टैटिक फंड्स फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए के ऊपर आपने यदि काम किया, 60% 1 लाख रुपए का 60,000 रुपए होता है। अब आप देखिए कि इसकी ताकत क्या है, इस पर्टिकुलर सेटअप की, गैप अप की। तो इस पूरे ट्रेडिंग के जो हमारे सेटअप जो हैं उसमें जो मेरा जो सबसे फेवरेट जो है, जो जो 4-5 जो है उसमें गैप ट्रेडिंग इज वन ऑफ दैम। और उसका वजह ये है क्योंकि यहाँ पर आपका पैसा जो है वो एफर्टलेस बनता है, आपका पैसा जो है वो हमेशा एफर्टलेस बनता है, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्लियर, चलिए। तो आज का सेशन जो है हम जो है यहीं पे समाप्त करते हैं, और अगले सेशन में जो है हम ये जो अपने जो टाइप्स ऑफ गैप्स जो थे, जो हमने देखे थे अभी कि कॉमन गैप क्या होते हैं, ब्रेक अवे, रन अवे और एग्जिट, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे, हम लोग और एग्जांपल्स भी लेंगे। इस बीच जो है आप एटलीस्ट इन गैप्स को जो है वो ढूंढना शुरू कीजिए मार्केट में। हाँ, हमारे आगे आने वाले सेशन में इन गैप्स को एक रेडीमेड जो है हमारे सामने सुबह 9:30 बजे के आसपास जो आ जाएं, वो वेबसाइट्स क्या हैं, वो जो हैं रिसोर्सेज क्या हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी यदि आप अपनी वॉच लिस्ट यदि देख रहे हैं तो आप प्री ओपन प्राइजेस के हिसाब से जो ओपन प्राइजेस जो आते हैं 9:12 के ऊपर, उससे आपको पता पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक जो है वो गैप अप हो रहा है और गैप डाउन हो रहा है। एटलीस्ट आप वहां से शुरुआत करें, उसके बाद में और रिफाइंड जो उसके जो रिसोर्सेज हैं हम उसके ऊपर भी जाएंगे। और ऑफ कोर्स जो है आपके पास में किसी तरह की क्वेरी हो आज के सेशन के बारे में, आप मुझे टेलीग्राम चैनल के ऊपर या फिर फेसबुक के ऊपर जहां पर भी आप मुझसे जुड़े हुए हैं आप मुझे दें क्वेरी, उस क्वेरी को मैं जो है वो इमीडिएटली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। हैप्पी ट्रेडिंग।